وزیر اعظم عمران خان نے ون ونڈو کمپلینٹ سسٹم کی منظوری دے دی. وفاقی اداروں کی شکایات سیلز کو پاکستان سٹیزن پورٹل سے منسلک کرنے کا فیصلہ. ابتدائی طور پر وفاقی وزارتوں کے 33 شکایات سیلز منسلک کیے جائیں گے. صدر ڈاکٹر عارف الوی کا شمالی وزیرستان اور باجوڑ میں شہید ہونے والے حوالدار تاجدر علی، سپاہی رشید اور سپاہی ثابت شاہ کے لواحقین سے ٹیلی فونک رابطہ. شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا. بھارتی فوج کی ایل او سی کے دیوا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ. پاک فوج کی جانب سے بھارتی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا گیا. فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہونے والوں میں سپاہی نور الحسن اور سپاہی وسیم علی شامل. پاک فوج کی جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کا جانی و مالی نقصان ISBR. وزیر اعظم نے کراچی کوئٹہ چمن شاہراہ ایکسپریس وے کی منظوری دے دی. 790 کلومیٹر طویل شاہراہ بناؤ، چلاؤ اور منتقل کرو کی پالیسی کے تحت تعمیر ہوگی. چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ. مقبوضہ کشمیر تنازع کا حل جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے بہت اہم ہے. مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے. ترک صدر رجب طیب اردوان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ویڈیو لنک خطاب. جنرل اسمبلی میں کشمیری عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے شکر گزار ہیں. ترکی کی غیر متزلزل حمایت کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں ان کے لیے استحکام کا باعث بنتی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ. نیب کی جانب سے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور بچوں کے خلاف ریفرنس دائر کیا جا چکا ہے. ریفرنس میں 16 افراد نامزد ہیں. 4 کا تعلق شہباز شریف خاندان سے ہے. میڈیا پر صفائی دینے والے عدالت میں صفائی پیش کریں. مشیر داخلہ شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس. حکومت آزادی اظہار رائے پر مکمل یقین رکھتی ہے. صحافیوں کی فلاح اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں. صحافیوں کی تنخواہوں کے مسئلے کے حل کے لیے نمائندہ صحافتی تنظیمیں متحرک کردار ادا کریں. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کی نیشنل پریس کلب کے صدر شکیل انجم سے گفتگو. مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی ناقابل برداشت ہے. بھارت تمام پابندیوں اور مظالم کے باوجود کشمیریوں کی آواز کو نہیں دبا سکتا. کشمیری عوام منزل کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. کشمیری رہنما. بھارت کے شہر جودھ پور میں 11 پاکستانی ہندو تارکین وطن کی پراسرار موت اور بھارت کے عدم تعاون پر پاکستان میں ہندو برادری کا احتجاج. پاکستان ہندو کونسل کی جانب سے بھارتی حکومت کو الٹیمیٹم کا وقت ختم ہونے پر بسوں کا قافلہ اسلام آباد کے لیے رواں دواں. اسلام آباد میں احتجاج کا مقصد عالمی برادری کی توجہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی جانب مبذول کرانا ہے. امریکہ میں کرونا مریضوں کی تعداد 70 لاکھ، ہلاکتوں کی تعداد 2 لاکھ سے بڑھ گئی. نیو یارک میں سب سے زیادہ 33,000 ہلاک. موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی انفیکشن میں اضافے کا خطرہ. 1 جنوری 2021 تک ہلاکتوں کی تعداد 3,70,000 تک پہنچ سکتی ہے. امریکی ادارہ صحت. پاکستان میں ایک مرتبہ پھر انٹرنیشنل کرکٹ کا میلہ سجنے کو تیار. PCB نے زمبابوے کے دورہ پاکستان کی تصدیق کر دی. اس دورے کے دوران 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے. ون ڈے میچز 30 اکتوبر، 1 اکتوبر اور 3 نومبر کو ملتان میں ہوں گے. T20 میچز 7، 8 اور 10 نومبر کو راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے. ناظرین، نیوز ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں. ان خبروں کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ. مزید باخبر رہنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक के हम कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। रोल ओवर वीक है, उसके 2 दिन बाद हमने देखा मार्केट में आज कुछ पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दिया। इट मीन्स के ओवरऑल मार्केट के अंदर 41,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव जो एक सेंटिमेंट्स हैं प्रिवेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 42,000 के लेवल पर कंसोलिडेशन जो दिखाई दे रही थी वो वापस बैकफुट होते हुए दिखाई दी, लेकिन 41,500 साइकोलॉजिकल बैरियर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई देता है, जिसका इंपैक्ट हमने देखा आज की मार्केट में भी दिखाई दिया। एक पॉजिटिव नोट, रेंज बाउंड सिचुएशन, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं अच्छी टेरिटरी परफॉर्मेंस ग्रीन जोन में दिखाई दी है। लेट्स हैव अ लुक ऑन फर्स्ट सेगमेंट। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। ओपन हुई मार्केट 41,828.91 के लेवल पर। हायर साइड की मार्केट की 42,023.06, लोअर वॉज 41,755.69 एंड फाइनली क्लोजर 41,876.26 के, यानी कि हम देख रहे हैं कि रेंज बाउंड सिचुएशन मार्केट के अंदर नजर आई है। 47.35 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 582.79 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में कुछ वॉल्यूम्स अच्छे गेन्स होते हुए दिखाई दिए हैं। 141.51 मिलियन शेयर्स, वैल्यू रही 12.88 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। सिर्फ बैंक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.06 के इजाफे के साथ। 1.06 पे क्लोजर, 167.49 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। ओवरऑल देख रहे हैं हम एक स्क्रिप्ट के अंदर काफी हद तक वॉल्यूम जनरेट होना। इट मीन्स के आज जो है वो कुछ ज्यादा इसमें बाइंग देखी गई है। यूनिटी फूड्स इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.06 के इजाफे के साथ। 18.01 पे क्लोजर, 51.80 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली JSTL 2.17 का इजाफा देखा गया। 31.23 पे क्लोजर रहा, 36.25 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स, मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल जैसा कि मैंने कल बताया था कि कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट भी सामने आ रहे हैं। आज भी सेम सिचुएशन देखी गई है कि वो अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट जिसमें काम नहीं हो रहा था अब होते हुए दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि ओवरऑल मार्केट के अंदर जो फंडामेंटल्स रन करते हुए दिखाई दे रहे थे वो अब भी जो एट अ टाइम है वो दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बहुत ही स्पेशल टॉपिक आज के लिए सिलेक्ट किया गया है, विच इज इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के जरिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ सामने आ रही है वो किस तरीके से फ्यूचर्स की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में ये तमाम चीजें दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई देगी। रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। दुनिया में तरक्की नापने के पैमाने इलाकाई सतह पर मुख्तलिफ पाए गए हैं, लेकिन ये हकीकत भी तस्लीम शुदा है कि तरक्की का बराह रास्त ताल्लुक किसी भी मुल्क की शरह खानदगी में पिन्हा होता है। तालीम या खानदगी और आगाही ही इंसान को आगे बढ़ने, खोजने, नई इजादात के लिए सोच विचार करने के लिए राग़िब करती है। ये शऊर से हासिल जदीद टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि दुनिया के बेशतर मुमालिक अपनी मुल्की मईशत को बेहतर से बेहतरीन बना चुके हैं, क्योंकि आज वही कौमें तरक्की कर रही हैं जिन्होंने रिवायती शोबों के अलावा आला टेक्नोलॉजी की सनतों, तहकीक और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी की है। क्योंकि हम जितने चाहे रिवायती तरीके अपना लें, जब तक किसी भी शोबे में पैदावारी सलाहियत और टेक्नोलॉजी के साथ मंसूबे नहीं लगाएंगे, तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकते। हालिया सूरत हाल को ही देख लीजिए। फी ज़माना जरूरत इस अम्र की भी है कि हम अपने ताजरों और सनतकारों को भी जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी करने पर राग़िब करें और उनको तमाम सहूलियात फराहम की जाएं जिससे वो आला टेक्नोलॉजी की मसनूआत बरामद कर सकें। इस वक्त पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे से फायदा उठाते हुए ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए कि जिनमें फायदारी और यकसानियत हो, और टेक्निकल मसनूआत की बरामदात की हौसला अफजाई भी करनी चाहिए, जिनमें खुसूसी तौर पर इंजीनियरिंग, ऑटो इंजीनियरिंग, दिफाई सामान, अद्वियात, प्लास्टिक की मसनूआत वगैरह शामिल है। जिंदगी के मयार को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की आज किसी भी दूसरे मैदान से ज्यादा जरूरी हो चुकी है। ये वो वाहिद शोबा है जो कि मईशत, तिजारत, बरामदात, तालीम, सेहत, तामीराती सनत, ज़राअत और मुल्क के दीगर शोबों में बेहतरी के लिए इनकलाबी किरदार अदा कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया ने इस बात को जल्द तस्लीम करते हुए अपने निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया और इस दलील को साबित किया कि अहद हाजिर में कोई भी खित्ता टेक्नोलॉजी में तरक्की किए बगैर पैदावार में इजाफा और सनती तरक्की को नतीजा खेज नहीं बना सकता। जी
रिपोर्ट आपने देखी, काफी इंटरेस्टिंग हम पॉइंट्स जो है इस पर रेस किए गए हैं, हम देख रहे हैं। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दस अफजल साहब। आप प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लिखते भी हैं, राइटर भी अच्छे हैं और इसके साथ साथ इकोनॉमिस्ट भी हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये बताइए कि आपने रिपोर्ट देखी, इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी, कितनी इम्पोर्टेंट है आजकल की दुनिया में, जबकि कोविड भी आ गया और कोविड में ज़्यादातर यही देखा गया है वर्किंग फ्रॉम होम। ये तमाम चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं आजकल के माशरे में? थैंक यू नताशा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे इनवाइट किया प्रोग्राम में। तो जो रिपोर्ट आपने दिखाई है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है और मैंने रिसेंटली एक अंग्रेजी के अखबार में इसके बारे में एक कॉलम भी लिखा था। देखें, जो भी दुनिया में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सब इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं कि जो भी सोशल या इकोनॉमिक चेंज आता है सोसाइटीज़ के अंदर, उसके पीछे टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, नंबर एक। नंबर टू, जहाँ तक इकोनॉमीज़ की बात है और इकोनॉमिस्ट की बात है, ये कंसेंसस है, ये अगेन ये इत्तफाक राय है इकोनॉमिस्ट के दरमियान कि रिच और पुअर कंट्रीज के दरमियान जो हम एक डिफरेंस देखते हैं इनकम के अंदर, 80% ऑफ दैट डिफरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि गरीब मुल्क इसलिए गरीब हैं कि हमारे पास उस किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि अमीर मुल्कों के पास होती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है गरीब मुल्कों के लिए, बिकॉज हम टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, और अमीर मुल्कों के इसलिए बहुत ज़रूरी इशू है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या इसमें आप समझ लें इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो इतनी तेज़ी से आना शुरू हो गए हैं कि वहाँ के थिंकर्स अब बहुत परेशान हैं कि आने वाले दिनों में इसका जॉब्स के ऊपर और उनकी सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सर, इसके साथ साथ कोविड में हमने ये देखा कि ई कॉमर्स के ऊपर ज़्यादा काम हुआ है, यानी ऑनलाइन बिजनेसेस ज़्यादा फ्लरिश हुए हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल बिजनेसेस, क्योंकि ज़्यादातर जो रिटेल बिजनेसेस होते हैं जिनमें जाके आप शॉप से चीज़ें ले लेते हैं, उनसे ज़्यादा जो ऑनलाइन काम था वो ज़्यादा हुआ है। तो आने वाले दिनों में जब ऐसे ही आपने जॉब्स के ऊपर बात की या फिर आपने कहा कि ये तमाम चीज़ें इम्पैक्ट देंगी और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट ना हो जाए, तो अगर ऑनलाइन चीज़ों में आएंगे तो उतने ही बाजार भी तो बढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स अ फेयर पॉइंट। देखें, लेकिन बात यह है कि टेक्नोलॉजी किसी भी सोसाइटी में जब चलती है, जब उसके अंदर एक इजाफा होता है, तो ये कोई एक सीधा साधा प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो मैंने अपने उस कॉलम में ये भी लिखा है और मैं आपको बताता हूँ, आपके नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री में ये देखा गया है कि जब भी टेक्नोलॉजी किसी सोसाइटी में आई है तो उसने बहुत सी डिस्ट्रप्शन बल्कि इवन वायलेंस क्रिएट किया है। तो इसकी मैं आपको मिसाल इस तरह से दूंगा कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी बरतानिया में, तो वहाँ पे ये तमाम नई मशीन्स जब टेक्सटाइल सेक्टर में आना शुरू हुई, तो वहाँ पे बहुत सी जो कपड़े वीव करने वाले लोग, जिनको मेरे ख्याल में उर्दू में जुलाहा कहते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बगावतें की ताज बरतानिया या अंग्रेज सरकार के खिलाफ, और उनको आर्मी के या फौज के बलबूते पे जिनको दबाना पड़ा। तो कहने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी का आना किसी भी सोसाइटी के अंदर एक सीधा साधा प्रोसेस नहीं है, ये एक डिसरप्टिव प्रोसेस है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज अगर हमें कुछ चाहिए तो हम सोचते हैं कि हम मार्केट जाएंगे, फिर उसके बाद ये लेंगे और उसको जो है लेकर आएंगे, ये तमाम चीज़ें होती हैं ना। लेकिन यहाँ जब टेक्नोलॉजी और हमारे हाथ में मोबाइल होता है, एप्लीकेशन हमने फटाफट ओपन की और उसमें से ये चीज़ ऑर्डर की और वो घर पे आ जाती है। रात को लेट नाइट कुछ मूड हो रहा है खाने के लिए, आपने ऑर्डर किया, फौरन आपके डोर स्टेप पे। तो इस तरीके से बिजनेसेस ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रहे हैं। बिजनेसेस, देखिए मैं आपके मुझे पता है आपने जो क्वेश्चन पूछा, सॉरी मैं थोड़ी तमहीद लंबी बांध रहा था, तो मैं आ रहा था आंसर करने के लिए उसकी तरफ। देखें, किसी भी सोसाइटी में जब आपको टेक्नोलॉजी पे एक डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आपको दरकार है ना, तो उसके लिए आपको एक बेसिक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसका मतलब ये है कि आपको पाकिस्तान में अगर एजुकेशन की मिसाल आप ले लें, और आजकल ये ऑनलाइन आपको पता है क्लासेस भी हो रही हैं, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, ये एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो इसके लिए आपको एक रिलायबल और एक अफोर्डेबल इंटरनेट चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, उसके अलावा आपको ऐसी डिवाइसेस चाहिए जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जो है उस तालीम को एक्सेस कर सकें। अब मैंने कुछ डेटा के नंबर्स देखे हैं जो कि पाकिस्तान की सरकारी HIS
اور PSLM کے لیٹسٹ جو نمبرز ہیں 2018 اینڈ 2019 کو, رائٹ یہ آپ کو جان کے بہت تعجب ہوگا کہ پورے پاکستان میں صرف 7% ہاؤس ہولڈس کے پاس کمپیوٹر ہے, رائٹ اور اگر ٹیبلٹس کی بات کریں تو 1.5% ہاؤس ہولڈس کے اندر ٹیبلٹ ہے, اور میجورٹی آف یور ہاؤس ہولڈ یعنی کہ تقریباً 85% فون سے ایکسیس کرتے ہیں انٹرنیٹ, یعنی کہ وہ اتنا افورڈیبل نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کو جب ہم ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمیں آئی ٹی کے اندر آگے جانے کی ضرورت ہے, یا پوائنٹ ٹیکنیکل انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ایبسلیوٹلی. تو اگر ہم کہیں گے کہ اتنا زیادہ کاسٹلی انٹرنیٹ ہوگا تو وہ تھوڑا سا ان کے لیے ایک لیک آف ٹیکنالوجی ہو جائے گی. انٹرنیٹ ایکسیس دینا ضروری ہے, اور بالکل صحیح, تھوڑا سا اس کی جو ایک قیمت ہے وہ کافی کم ہو یا پھر فری ہو. یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا یہ بالکل آئی تھنک یہ پوری بات کو کہتے ہیں پوزے میں بند کرنا, اس کے مترادف ہے کہ ایشو صرف ٹیکنالوجیکل انوویشن کا نہیں ہے, ایشو ٹیکنالوجیکل ایکسیس کا بھی ہے. تو ایز اے سوسائٹی میں دیکھنا ہے, آپ نے ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو ریز کیا ہے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ میں دیکھ رہی تھی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ان کو جب ان کی ویڈیوز ان کے ٹیچرز انہیں سینڈ کرتے ہیں تو وہ اسے ایک بار نہیں بلکہ اس لیکچر کو 1000 ٹائمز دیکھتے ہیں. بالکل. تو اس طریقے سے ان کو زیادہ ایزی ایکسیس ہے اور ایزیلی ان کے لیے ایک ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے کہ وہ جو ان کا کانسیپٹ ہے وہ زیادہ جلدی کلیئر ہو رہا ہے, کیونکہ لیکچرز تو آپ اسکول میں لے لیتے ہیں اور دیٹس اٹ, ایک بار سنا بس ختم. لیکن وہ جو ٹیچر نے ویڈیو سینڈ کیے بنا کے اور سمجھا کے وہ بار بار دیکھ رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ ٹیکنالوجی ہیلپ فل ہے ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے یا پھر بزنس پوائنٹ آف ویو سے. جی بالکل ہیلپ فل ہے, بالکل ہیلپ فل ہے. سوری آپ آگے یو آر سیئنگ دیٹ یہی ہیلپ فل ہے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہیلپ فل ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. رائٹ. ایشو یہ ہے کہ ٹیکنالوجیکل ایکسیس سوسائٹی میں کیسے آئے گا, کیا یہ مارکیٹ پرووائڈ کرے گی یا اسٹیٹ کو یہ ٹیکنالوجیکل ایکسیس دینا پڑے گا لوگوں کو, کیونکہ عام لوگوں کے پاس تو اس قسم کے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹس خرید کر کے دیں. تو اگر ہم نے ایز اے سوسائٹی آگے بڑھنا ہے تو ہمیں پالیسیز, پرائرٹیز اور کیا کہنا چاہیے لیڈرشپ کی ضرورت ہے. تو چلیں سر, اکانومک گروتھ میں کیسے آگے بڑھیں, اس سے ٹیکنالوجی اب کتنا ہیلپ فل ہو سکتی ہے, یہ تو ایک ایسپیکٹ ہو گیا جو ہم نے ڈسکس کر لیا. اب جو اکانومک گروتھ ہو رہی ہے یا آنے والے دنوں میں جس طریقے سے بزنس پوائنٹ آف ویو میں ہے اس کی طرف آتا ہوں, تو وہ بتائیے آپ. دیکھیں دنیا میں جو چینجز آ رہے ہیں ٹیکنالوجیکل انوویشن کی وجہ سے, یہ آپ جتنے آپ کو یہ آج کل یہ جابز وغیرہ نظر آتی ہیں, جیسے اکاؤنٹنگ کی جاب ہے, فائنینس کی جاب ہے, ایون ویسٹرن کنٹریز کے اندر اس قسم کے مشینز کام کر رہی ہیں, یا مجھے کہنا چاہیے ایسے الگوریدمز ہیں یا ایسی مشین لرننگ کی ٹیکنیکس ہیں کہ وہ ایکس رے کو یا ایم آر آئی کو دیکھ کے یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ یہ جو ٹیومر ہے یہ بینائن ہے یا کینسرس ہے. رائٹ. مطلب اس قسم کی ان کی لرننگ ہے. تو میں آپ کو یہ زیادہ ہے, میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہت سی جابز جس کو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہوں گی, جیسے ہم سمجھتے ہیں ریڈیولوجسٹ کی جاب ہوگی, ڈاکٹری کی جاب ہوگی, وہ نہیں ہوں گی, وہ ختم ہو جائیں گی. تو آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے نظام تعلیم کو ایسا اس کے اندر ایک جدت لے کے آنی ہے, اس کو ایسی اس میں ایک ایج کریٹ کرنی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے اسٹوڈنٹس یا آپ کے جو ینگ لوگ جب وہ لیبر فورس کے اندر جائیں گے وہ اپنی جگہ بنا سکیں. اور وہ صرف تب ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ان کو کریٹیکل تھنکنگ اسکلس سکھائیں گے. تو آئی تھنک اگر ہم نے ٹیکنالوجی کو اکنامک گروتھ کے لیے یوز کرنا ہے ان دا فیوچر, ایک چیز ٹیکنالوجیکل ایکسیس ہے اور دوسرا آپ کا نظام تعلیم, وچ ہیز ٹو بی ویری گڈ. کیونکہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے جو پالیسی میکرز بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم کسی سے کم نہیں ہیں, ہماری اکانومی میں بڑی جان ہے. دیکھیں یہ آئی تھنک دس از ناٹ رائٹ. اگر آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں, جس میں اس کا تعین کیسے ہوتا ہے, اس کی اسٹرینتھ کا ریڈنگ اور میتھ اسکورس کے تھرو, اگر اس میں آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے نا تو آپ اپنی اکانومی میں بھی کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. اس میں کی ان پٹ ہے ہیومن کیپٹل. انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, اگر کووڈ کے اندر آپ پاکستان کے اکانومک پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کو اسکیل میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کووڈ کے اندر پاکستان نے اسمارٹلی لاک ڈاؤن کے تھرو اوور آل اپنی جو تمام چیزیں ہیں ان کو جلدی ایک ہم کہیں گے ریگولرائز کیا ہے یا پراپرلی سکسیزفلی اس کو ٹریک پہ لائے ہیں. یا اگر ہم پالیسیز کی بات کریں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اچھی پالیسیز دی, مانیٹری پالیسی کی جیسے کہ ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے
रहे थे, उसकी बात करें तो वो टाइमली हमें डिलीवर किया गया कि उसको प्रॉपरली जो है वो हम बिजनेसेस जो है वो आउट ना हो जाए, ऑन ट्रैक ही रहें. तो इस पे प्लीज कमेंट करें कि किस तरीके से ये पॉलिसीज बनी है. देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा. स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी बहुत अच्छी थी. अब मैं ये चाहता हूँ कि हम इसको जितने भी तमाम SOPs हैं बिल्कुल हमें ज़रूरत है सबको फॉलो करने की, बिकॉज आपको पता है अगर स्पेनिश फ्लू 1918 की एग्जांपल लें जो कि एक पैंडेमिक था, उसमें एक सेकंड वेव आई थी और हमने देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में सेकंड वेव आ रही है, तो यहाँ भी आ सकती है. एंड दैट इज़ अ डेंजर फॉर आवर इकोनॉमी. हैविंग सेड दैट, आपने बात की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कि उन्होंने जो मेजर्स लिए हैं, आई थिंक बहुत अच्छे मेजर्स लिए हैं उन्होंने. मैं कल परसों ही उनकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई है, मेरे सामने भी पड़ी है, मैं इसको देख रहा था, मैं इसको पढ़ रहा था. लेकिन मुझे लगता ये है नताशा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना वो लार्जली कामयाब नहीं हुई इन टर्म्स ऑफ रिवाइविंग द इकोनॉमी. मुझे ये लगता है क्योंकि एक रिसेंटली इंडिया से एक रिपोर्ट आई है, एक बड़ा अच्छा जर्नल है वहाँ पे, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली. सर सम्राट तो भी आएंगे ना, इसके जो इम्पैक्ट हैं वो तो अब आना शुरू होंगे ना. जैसे जब रेट कट ऑफ हुआ था, जहाँ से हम स्टार्ट से देख रहे थे इस ईयर के स्टार्टिंग से अग्रेसिवली जब बढ़ाया गया था तो वो तो हम एक IMF प्रोग्राम में थे, लेकिन जब अग्रेसिवली कट भी किया गया तो उसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे बहुत अच्छा हुआ. अगर हम मार्केट देख रहे हैं टू द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा था बिजनेस स्टेटिस्टिक्स स्टेट बैंक की जो नंबर्स थे, तो अगर आप उसमें देखें ना, स्टेट बैंक की जो लेंडिंग है टू नॉन गवर्नमेंट सेक्टर वो एक्चुअली एक साल में कम हो गई है पहले के मुकाबले में. तो मतलब ये जो क्रेडिट ऑफ टेक है, जो क्रेडिट की अपटेक होनी चाहिए, वो उस तरह से नहीं है. करेंसी का भी इम्पैक्ट है. इस पर हम मजीद बात करते हैं, पहले हम कमोडिटीज ऑफ फॉरेक्स के सेगमेंट पे चलते हैं. कमोडिटीज ऑफ फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं. गोल्ड की पर डॉलर प्राइस 1,17,894 रुपीज. गोल्ड पर 10 ग्राम 1,01,182 रुपीज. इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1,890.08 डॉलर. ऑयल WTI पर बैरल $39.95 डॉलर. ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $41.94 डॉलर. करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 192.50, सेलिंग वॉज 194.50. यूके पाउंड बाइंग रही 210.50, सेलिंग वॉज 214.50 एंड US डॉलर बाइंग रही 165.90, सेलिंग वॉज 166.40. Saudi Riyal buying at 43.85, selling was 44.40. UAE Dirham buying at 44.95, selling was 45.45. And lastly, Kuwaiti Dinar buying रही 514 रुपीज, selling was 516.50. ये था करेंसीज और फॉरेक्स का लेटेस्ट अपडेट. ओवरऑल हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट डेली बेसिस पे दिखाई दे रहा है. 39 to 41 डॉलर के अराउंड ट्रेड कर रहा है. और इसके साथ साथ अगर हम गोल्ड की बात करें तो ओवरऑल गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं. डॉक्टर अंतस अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे. सर, इंटरनेशनली गोल्ड प्राइस काफी फ्लक्चुएट कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में भी आ रहा है, तो इस कमोडिटी को कैसे देख रहे हैं और अभी हमारी मार्केट में लोगों को क्या करना चाहिए, इसको कैसा इम्पैक्ट देना चाहिए? देखिए, ये तो एक इन्वेस्टिंग एडवाइस है. मैं तो उस किस्म की एडवाइस तो नहीं दे सकता. मैं तो एक इकोनॉमिस्ट हूँ प्राइमरीली. तो अगर आप इकोनॉमी के बारे में कोई एनालिसिस करवाना चाहें तो दैट्स लाइक, बिकॉज ये जो चीज़ है ना गोल्ड के बारे में एडवाइस देनी, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है. टेक्निकल चीज़ है. मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता. करेंसी के बारे में बताइए कि करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉलिसी रेट आया है जिसपे हम कमोडिटी से पहले बात कर रहे थे, एग्जैक्टली कितना इम्पैक्ट है पॉलिसी का करेंसी के इम्पैक्ट पे? लाइक अगर हम बात करें कि डॉलर का इम्पैक्ट जो है वो हमारी वैल्यूएशन पे आता है, 166 रुपीज जो है वो चल रहा है डॉलर. तो अब आने वाले दिनों में अगर पॉलिसी रेट को, जैसे कि आपने कहा कि अभी 7% दिखाई दे रहा है और इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा, अगर आता है आने वाले दिनों में या फिर थोड़ा सा माइनर जो है वो बढ़ा दी जाती है पॉलिसी 25 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट आगे आने वाले दिनों में, करेंसी पे इम्पैक्ट आएगा? देखिए, करेंसी तो लार्जली जो हम आ सकता है इन द सेंस के हमारी जो करेंसी है यानी कि डॉलर सस्ता हो सकता है स्लाइटली, पूरी दुनिया से फिर पैसा जो है वो पाकिस्तान का रुख करेगा इफ आप ज़्यादा उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं. लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि इन दीज टाइम्स ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर जो फोकस है ना, आई थिंक दैट्स अ लिटिल मिसप्लेस्ड. आई थिंक हमें फिस्कल साइड से भी सोचना चाहिए हमारे पॉलिसी मेकर्स को कि हम कैसे अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वो ताकत है कि जो हमारी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके. अब हमारे नंबर्स बहुत अजीब हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें
सर नंबर्स तो 2017 में भी अगर हम बात करें मार्केट की जो एक वैल्यूएशन थी वो डिफरेंट थी, अभी अगर हम बात करें मार्केट की वैल्यूएशन तो नंबर्स तो हमेशा अलग देते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम ग्रोथ स्केल को देखें तो फिर उसकी बात नहीं, ग्रोथ तो खैर छोड़ ही देना, उसके तो जो अभी मसाइल चल रहे हैं और ये कोविड की वजह से पूरी दुनिया में, इट्स नॉट जस्ट दैट। मैं ये आपको बता रहा था नताशा कि अगर आप दुनिया में देखें कि जो स्टिमुलस पैकेज डिफरेंट कंट्रीज ने अपनी अपनी इकोनॉमी में इंजेक्ट किया है अपनी इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए, वी आर वेरी 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 फार बिहाइंड। तो अगर आप देखें पाकिस्तान में हमने तकरीबन 3.8% ऑफ आवर GDP हम अपनी इकोनॉमी में एलिजिडली डाल रहे हैं। वैसे उसके अंदर भी एक कुछ आप समझ लें कि नॉट एवरीबडी एग्रीज के उतना है। अब आप दुनिया में कंपेयर करें, इंडिया 7%, चाइना 7%। अब थिंक अबाउट हाउ बिग दीज इकोनॉमीज आर, राइट। यू नो, चाइना की इकोनॉमी $15 ट्रिलियन पे पहुंच रही है, अमेरिका 13% ऑफ $15 to $20 ट्रिलियन। तो हम $300 बिलियन का 3.8% हमने अपने डाले। तो हमें बेसिकली इस वक्त मेरे ख्याल में फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में नहीं सोच रहा होना चाहिए। इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी है इस इकोनॉमी में, इस सोसाइटी में होनी चाहिए इकोनॉमिक रिवाइवल, जॉब्स और पॉवर्टी रिडक्शन। राइट, ये चीज, ये नंबर पॉवर्टी रिडक्शन तो जरूरी है सर, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी इनिशिएटिव है कि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जॉब्स जो हैं वो क्रिएट की जाएं और ओवरऑल जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अकदस साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफी डिटेल एनालिसिस हमने आज इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी डिस्कस किया प्रोग्राम के अंदर, खासकर ओवरऑल जो हम देख रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी काफी हद तक जो मसाइल है वो हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले हमें प्रॉब्लम्स होती थी कि घर से निकलना कैसे है, चीजें कैसे लेनी है, या फिर कोई मैसेज किसी को कैसे पहुंचाना है। अब तमाम चीजें बहुत एक वन टच पे हो गई हैं, तो ये ही एक इनोवेशन है और आने वाले दिनों में यही एक्सपेक्टेशन है कि ये तमाम चीजें जो है वो मजीद जिद्दत की तरफ या मजीद जदीद आइडियाज जो है वो लेकर हमारे जमाने में या हमारे माशरे में आते हुए दिखाई दें। दैट्स वाइंड अप द प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, विच इज besttalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। कोरोना, हर तरफ बस कोरोना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दर हकीकत कोरोना वायरस दिखता कैसा है? साइंस, माहौलियात और लाइफस्टाइल की रिपोर्ट्स पर मबनी शो सवाल के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। वायरस से मुतालिक कुछ अहम मालूमात के अलावा सवाल में शामिल है आज, एक कुदरती निजाम तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है हमारे सैयारे को, और क्या मर्दों का मुदाफ़ती निजाम औरतों से कमजोर है? चाहे कोविड-19 हो, HIV या एबोला, वायरस नजर न आने वाले मगर बहुत ही मुतहर्रिक जानलेवा अनासर है। वायरस को देखना आसान नहीं, ना ही आप इन्हें सूंघ सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। कोरोना वायरस की शाया होने वाली तस्वीर से हमें कुछ अंदाजा तो है कि ये कैसा दिखता है, लेकिन क्या दर हकीकत वायरस ऐसा ही है जैसा कि हमें बताया जा रहा है?
मदार में घूमते हमारे सैयारे जमीन को कुछ बैरूनी मादों से तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत रहती है और ये तहफ़्फ़ुज़ इसे फराहम है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दीगर गैसों की मुख्तलिफ तहों से, जिन्हें एटमॉस्फेयर या कुरे हवाई कहा जाता है। जमीन के इर्द गिर्द कुर्रा हवाई क्यों मौजूद है? जमीन का कुर्रा हवाई गैर मामूली चीज नहीं है। हमारे निज़ाम शम्सी के कई दीगर सैयारे और अजसाम भी कुर्रा हवाई रखते हैं। मिसाल के तौर पर बड़ा सैयारा मुश्तरी और इसका चांद यूरोप। किसी सैयारे के गिर्द कुर्रा हवाई तब बनता है जब इस सैयारे में से गैसेस का इखराज हो और जब कोई शहाब साकिब या दुमदार सितारे इससे टकराते हैं, जिससे गर्दो गुबार उठता है। जमीन का कुर्रा हवाई काफी पेचीदा और कई सतहों पर मबनी सिस्टम है। सतह जमीन से 90 किलोमीटर की बुलंदी तक ये ज्यादातर नाइट्रोजन पर मबनी है। जिंदा चीजों की तरफ से पैदा होने वाली ऑक्सीजन भी इसमें शामिल होती है। हमारा कुर्रा हवाई खला में काफी दूर तक फैला हुआ है, जो चांद या इससे भी आगे तक जाता है। जमीन की कमियत इसके लिए काफी है कि ये अपनी कशिश शकल के लिए कुर्रा हवाई को बरकरार रख सके। इसके बरखिलाफ सुर्ख सैयारे मरीख की कशिश शकल हमारी जमीन के मुकाबले में महज 1/3 है। मरीख की सतह पर कुर्रा हवाई इतना रकीक है जितना हमारी जमीन की सतह से 30 किलोमीटर बुलंदी पर कुर्रा हवाई का इर्तिकाज। जमीन का कुर्रा हवाई मकनातीसी मैदान भी रखता है, जो इसे सोलर विंड या शमसी हवा के चार्ज शुदा ज़र्रात से महफूज रखता है। मरीख का मकनातीसी मैदान अब से करीब 4 अरब साल पहले खत्म हो गया था। सोलर विंड इसके कुर्रा हवाई को खला में फैला सकती है, लेकिन जमीन भी कुर्रा हवाई से महरूम हो रही है। जमीन के कुतबैन के करीब 2 इलाकों में सोलर विंड में शामिल जर्रात हमारे कुर्रा हवाई में अंदर तक दाखिल हो जाते हैं, जो कुतबी रोशनियों की शक्ल में नजर आते हैं। हयातियाती अवामल जैसा कि पौधों में ज़ियाई तालीफ वगैरह इस नुकसान को काफी हद तक पूरा करते रहते हैं। जमीन की कमियत में भी सुस्त रफ्तारी के साथ कमी वाक़ई हो रही है। जमीन अब तक अपने कुर्रा हवाई को महफूज रखने में कामयाब रही है, क्योंकि ये सूरज से निस्बतन करीबी मदार में गर्दिश करती है और चूंकि जमीन घूमती भी है, और इस वजह से इसका कुर्रा हवाई इस कदर गर्म रहता है कि इसमें मौजूद गैसें जमती नहीं, जैसा कि मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड मरीख की सतह पर जम जाती है। तस्वुर करें, आप समंदर की गहराइयों में रह रहे हैं। आप मछलियों, केकड़ों और दीगर समुद्री हयात को बहुत करीब से देख सकते हैं। ऐसा ही किया एक रिसर्चर ने, जिन्होंने गुज़िश्ता 50 सालों में समंदरों की तह में मौजूद आबी हयात के तर्ज जिंदगी को जानने के लिए बहुत सा वक्त ज़ेरे आब गुजारा। जरा सी छींक आ जाए तो बस बिस्तर पर पड़ जाएं। मर्द अक्सर तकलीफ का इजहार जोरों शोर से करते हैं। क्या ये वाकई तकलीफ में होते हैं या फिर दिखावा होता है? कहते हैं कि ख्वातीन शदीद दर्द में भी अपनी तकलीफ का खुलकर इजहार नहीं करती। तो क्या मर्दों और ख्वातीन की तकलीफ की शिद्दत मुख्तलिफ होती है? मौसम सरमा में निस्फ आबादी खौफजदा नजर आती है। खासतौर से मर्द हजरात ठंड लगने से डरते हैं। सर्दियों में जब खवातीन को मामूली नज़ला और खांसी का सामना होता है तो मर्द मर्दाना फ्लू में मुब्तला हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या मर्द खवातीन की तरह मजबूत नहीं होते? इम्यूनोलॉजिस्ट ने पता चलाया है कि इन्फेक्शन में भी सिनफी फर्क पाया जाता है। ऐसा लगता है कि औरतों और मर्दों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कुछ मुख्तलिफ तरीके से काम करती है। मर्दों में औरतों के मुकाबले में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है और इन्फेक्शन का ये मुश्किल से मुकाबला करते हैं। और इसकी वजह भी हार्मोन्स हैं। ख़वातीन में एस्ट्रोजन की बहुतात होती है। ये मुदाफ़ियाती खलियों को तेजी से रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा करने के लिए मुतहर्रिक करता है। इसकी वजह से मर्दों के मुकाबले में औरत के जिस्म में वायरस का तेज रफ्तार और जारहाना मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ जाती है।
लिहाजा हार्मोन्स और जीन्स भी मर्दों के जल्दी बीमार होने के असबाब में शामिल हैं। लेकिन क्या इन्फेक्शन खवातीन से ज्यादा बुरी तरह मर्दों पर हावी होता है? दरअसल ऐसे साइंसी शवाहिद मौजूद हैं जिनसे ये इम्कानात जाहिर होते हैं कि मामला इसके बरक्स है, यानी कि बास इन्फेक्शन खवातीन को ज्यादा शिद्दत से मुतासिर करता है। मर्दों और औरतों में दर्द की हसासियत के बारे में मुतअद्दिद जायजे मौजूद हैं और ये पता चला है कि खवातीन दर्द के बारे में ज्यादा हसास होती हैं। इसके अलावा शदीद मुदाफ़ियती रद्द-ए-अमल जैसे खवातीन में होता है। इसके लिए जिस्म को सख्त मेहनत करना पड़ती है क्योंकि ये कलील मुद्दत में इससे भी ज्यादा शदीद अलामात का बायस बन सकता है। बहरकैफ मर्द खवातीन के मुकाबले में अपनी तकलीफ या दर्द पर ज्यादा तवज्जो मरकूज रखते हैं। अगर इन्हें जुकाम हो तो उनकी पूरी तवज्जो गले की एक एक खराश पर होती है। वैसे एक और वजह ये भी है कि मर्द अक्सर खुद कोई न कोई इन्फेक्शन लगा लेते हैं क्योंकि वो खवातीन के मुकाबले में अपने हाथ बहुत कम धोते हैं। हाथों की सफाई तमाम सिन्फों के लिए बेहतरीन एंटीवायरस है, यानी मर्दों और औरतों दोनों के लिए। तवक्को करते हैं कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए #सवाल के साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर। सवाल में शामिल रिपोर्ट्स देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं सवाल का खुसूसी पेज हमारी वेबसाइट dw.com/urdu पर। अब दीजिए हमें इजाजत, आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे साइंस की दुनिया की मजीद हैरत अंगेज रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। ये मंजरनामा है। मंजरनामा, यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयार जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर। होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे, क्या बदली आपकी राय? बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकती है और अवाम के खातिर किए जाने वाले फैसलों के सम्राट अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। खबरों के हजूम में सच की तलाश मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात को हम परखते हैं हर जाविये से और बिलाखिर ढूंढ लाते हैं सच को जो हकायक पर मबनी होता है। देखिए प्रोग्राम सच के साथ सैयद अनवारुल हसन के साथ। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। बस थोड़ा सा सब्र, हिम्मत और अज़्म दरकार है फरसत। तकदीर कभी
بدلती नहीं, बदली जाती है। इस कहानी का इख्तिताम हमारे ही हाथों होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि सारी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए, अर्तुगरुल वही करेगा जो हक है। तैयार हो जाओ टीमू सुल्तान, कोनिया जाओगे। ये सच है कि हमारे दरमियान गद्दार मौजूद है। वो गद्दार तुम्हारा ये सिपाही है कोजाबाश। हमला करो! कबीले में हर मुसीबत का जिम्मेदार अर्तुगरुल है, लेकिन आप मुझ पर एतमाद नहीं करते क्योंकि मैं आपकी सौतेली हूं। नो यार, तुम वापस कबीले जाओगे और बताओगे कि अर्तुगरुल ने तो इनको मार दिया। काफ से बढ़कर आलीशान यही है, गिलगित बल्तिस्तान यही है। जादू की सतरंगी नगरी जिसका जर्रा जर्रा चमके, जिसमें हैरत की लौ दमके। नाज़रीन, बराह रास्त आपको क्वेटा प्रेस क्लब में चलेंगे, जहां कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सोरी मौजूद हैं, खिताब कर रहे हैं। यहाँ पे मौजूद तमाम सियासी जमातों के अक़राबीन का, तमाम ओहदेदारों का, यहाँ पर बैठे हुए तमाम कारकुनों का और इसके साथ साथ साफ़ी बरादरी का मैं शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले जो ये 50 साल जो एक तवील जदोजहद है, 1970 से क्वेटा प्रेस क्लब का क़याम और उसके बाद आज 2020, तो इस 50 साला दौर में मैं समझता हूँ जो हमारे वो उनको भी हमें याद करना चाहिए, वो हमारे साफ़ी बरादर, वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपना साफ़त का अलम उठा के रखा, मुश्किल अदवार में भी जानों का नजराना दिया। तो उन तमाम को भी आज सलाम पेश करते हैं उनकी जद्दोजहद को, और इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह क्वेटा प्रेस क्लब हमारा जो बलूचिस्तान का मैं समझता हूँ एक आवाज़ है पूरे पाकिस्तान में, और जो साफ़ी बरादरी जिनका ताल्लुक क्वेटा से रहा है, बड़े बड़े नाम यहाँ पे पैदा हुए और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे मौज़ूआत पर लिखा, बलूचिस्तान के मसाइल को उजागर किया पूरी पाकिस्तान की सतह पर। और जो मुश्किल दौर से पिछले 10-15 साल मैं समझता हूँ जो दहशतगर्दी के थे, उसमें हम सब पूरे बलूचिस्तान के लोग गुजरे, उसमें काबिल सताइश है हमारे साथियों का भी किरदार कि बहुत सी जगह पर धमाके हुए, कवरेज में हमारे बहुत से इस तरह के साफ़ी हजरात, कैमरामैन, कवरेज करते हुए लोग शहीद हुए। तो उन तमाम को भी मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो कौमी असम्बली में और जो सूबाई असम्बली में जो हमारे बलूचिस्तान की जो नशिस्तें हैं वो कम है, नुमाइंदगी कम है। तो मैं ये तमाम हमारे अकाबरीन ने बड़े खूबसूरत अंदाज में मुकदमा पेश किया बलूचिस्तान का, और उन्होंने इज़हार राय किया, मुख्तलिफ चीज़ों को भी ज़ेर बहस लाए इसके साथ साथ। तो बहुत ही अहम मौजू है। और जब मैं कौमी असम्बली में गया तो मेरे और भी बहुत से यहाँ से साथी गए हुए हैं, तकरीबन हम 20 हैं, 16 जो है वो इंतखाबात लड़के गए और दूसरे जो है वो ख्वातीन की नशिस्तों पे हैं, अक्सर ख्वातीन हमारी 4। तो ये कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होती है कि हमारी आवाज़ बहुत कम है और बटी हुई है। अलग अलग सियासी जमातों से लोग आए हैं, मुख्तलिफ फिक्र और सोच के साथ वहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो अपना तजर्बा बताऊं कि जो आपने बात की सब ने मेरे दिल की आवाज़ है कि मैं वहाँ पे अपनी जमात में सिर्फ आपको बताता चलूँ, जब मैं देखता हूँ कि पंजाब से हैं लोग, जब पंजाब की बात आती है तो सारे मुत्तफिक हो जाते हैं, अपने सारे झगड़े छोड़ देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ी तादाद है हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान की, चाहे वो जमात के अंदर मुख्तलिफ ग्रुपों में हो, लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा की
बात आती है, उसके हकूक की बात आती है, तो वो सारे एक होकर उसकी कोशिश करते हैं। और जब मैं भी अपने आप को देखता हूँ अपनी जमात में भी, तो तादाद हमारी कम है, हम सिर्फ 3 हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, एक खातून और 2 हम, खान मोहम्मद जमाली साहब और मैं। तो हमें भी एक ये महसूस होता है कि हम बहुत कम हैं। तो इस चीज़ की कमी को दूर करने के लिए जो मेरी वहाँ पे पहली कोशिश होती है कि जो भी किसी भी जमात से हो, उसका ताल्लुक अगर बलूचिस्तान से है, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि बलूचिस्तान की आवाज़ किसी तरह कौमी असम्बली में आए। जब भी मैं इजलास की सदारत कर रहा होता हूँ कौमी असम्बली की, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी बलूचिस्तान से कौमी असम्बली का नुमाइंदा है, चाहे किसी भी जमात से है, तो उसको पूरी कोशिश करूं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे सकूं कि वो हमारे बलूचिस्तान का मुकदमा पेश कर सके। चाहे अख्तर मैंगल साहब हों, हमेशा आप नोट करें कि जब मैं अगर सीट पे बैठा हूं तो ज़्यादा से ज़्यादा बलूचिस्तान के लोगों को मेरी कोशिश होती है कि उनको, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम के नुमाइंदे हों, चाहे बाप पार्टी से ताल्लुक़ हो, चाहे वो BNP मैंगल से हों, कि वो बलूचिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। हम कम हैं और हमें वहाँ पे भरपूर साथ देना चाहिए। 20 सीटों से जिस तरह बताया कि अगर हम छोटे सूबे तीनों छोटे सूबों में एक सियासी जमात की भी अगर तमाम सीटें वो जीत जाए जमात, तो वो फिर भी पाकिस्तान में हुकूमत नहीं बना सकती। पंजाब की सीटें जिस तरह इन्होंने बताया अभी बलेदी साहब ने भी कि 174 सीटें हैं, तो आप खुद सोचें जब 174 के साथ बाकी तमाम सूबे भी इकट्ठे हो जाएं तो वो 342 में आधे से कम की रेशो पे होते हैं। तो आबादी के हवाले से ये सीटों की तकसीम है, मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ नहीं है। और इसके अंदर खसूसन जो गुर्बत है, जो एहसास महरूमी है, जो मादी वसाइल है, इन तमाम को भी रकबे को भी देखना चाहिए और उसके साथ एक ऐसा फार्मूला होना चाहिए कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी छोटे सूबों से भी हो सके। 44% रकबा है, जिस तरह अभी बताया कि सिर्फ एक अवारान का जो रकबा है वो फैसलाबाद से भी, फाटा से भी ज्यादा है और फाटा की 8 नशिस्तें हैं। मैं भी खुद असद उमर के साथ और जुबैदा जलाल के साथ पिछले दिनों जनूबी बलूचिस्तान के दौरे पे था और मैंने पूरा वो इलाका विजिट किया और वहाँ पे जो मसाइल थे और जो पसमानदगी थी और मुश्किल जिंदगी थी, उसका आप यकीन करें कि एहसास हुआ है। और हम पूरी ये मौजूदा हुकूमत हमारी वफाकी कोशिश कर रही है कि किसी तरह उन इलाकों में डैम्स बनाए जाएं, लोगों को रोजगार के मौके दिए जाएं। वहाँ पे आमदोरफ्त के लिए वो जो रोड अक्सर जगहों पे नहीं है और लाजमी थे, उनका हमने पूरा जायजा लिया। और जो हमारी पूरी कोशिश है कि वहाँ की जो आबादी है उसके मसाइल को हल किया जाए, ना कि वो ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएं जो कमीशन बेस्ड हों और जिससे लोगों को की जिंदगियों में बेहतरी ना आए। तो ये पूरी कोशिश थी। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत से लोगों ने और भी बातें की। फाटा के हवाले से भी बातचीत हुई, तो मैं आपको बताता चाहूँ हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने सूबे के अंदर वहाँ पे फाटा को मर्ज किया, एक कानून साजी की हमने कौमी असम्बली के अंदर। तकरीबन 54 बिल हम 2 सालों में पास कर चुके हैं और बहुत सी ऐसी कानून साजी की है जो अवामी हिसाब से मैं समझता हूँ कि लोगों के फायदे में थी। फाटा को सूबे में मर्ज करना, उसके बाद वहाँ पे सूबाई इंतखाबात कराना, मैं समझता हूँ लोगों की नुमाइंदगी देना, ये एक बहुत बड़ा काम था। फिनांस बिल तो हर साल हम पास करते ही रहते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के हवाले से भी हमने बिल पास किया, ज़ैनब अलर्ट बिल हमने वहाँ पे पास किया। औरतों को जो हक नहीं दिया जाता, जो उनकी जायदाद में, विरासत में, उस हवाले से हमने वहाँ पे कानून साजी की। और यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो हमने अभी फैटफ का बिल पास किया, इसके साथ साथ इंसानी हकूक के हवाले से हमने बिल पास किया, PMDC के हवाले से हमने बिल पास किया। अभी यहाँ पे एक लोनी साहब ने कहा कि मगरबी रूट के हवाले से, तो मैं इनको बताता चलूँ अब्दुल कादिर लोनी साहब को कि मगरबी रूट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फैसला किया कि जोब से कुशलाक तक का रोड बनेगा और वो बन रहा है, उसके टेंडर भी हो चुके हैं। और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो वादा किया था, आप कह रहे थे कि शायद हुकूमत में आके पूरा नहीं करते, तो ये वादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा किया।
किए गए वादे पीटीआई ने पूरे किए हैं। सहाफत के मैदान की बात करें तो यहाँ बलूचिस्तान में बड़े बड़े सहाफियों के नाम दिखाई देते हैं। क्वेटा के सहाफियों ने, बलूचिस्तान के सहाफियों ने बलूचिस्तान के हुकूक के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। उन कुर्बानियों को सराहा जाना चाहिए। ये कहा गया डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी की जानिब से, जो क्वेटा प्रेस क्लब में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के साथ बाद आपसे मिलेंगे लाइव एट 6 में बराह रास्त। हमारे साथ रहिएगा। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दरोज